believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. Amen. We thank you, Abba Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्ग के पिता, आपका धन्यवाद करते हैं once again for giving us an opportunity एक बार फिर से आपने हमें यह सौभाग्य दिया to come in your presence. कि हम आपकी मौजूदगी में आ सकते हैं। Under your shed blood we come आपके बहे हुए लहू के नीचे हम आते हैं and desire a sincere time of fellowship with you once again. और इच्छा करते हैं ईमानदारी के साथ आपके साथ एक संगति का अवसर। Kindly break this bread of life for us कृपया करके इस जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ दें and feed thy lambs. और अपने मेमनों को खिलाएं। Lord, this is the last service of the series in Ambikapur, खुदावन ये अंतिम सभा है इस श्रृंखला में खुदावन अंबिकापुर में। and we know that you always do something special, और मैं जानता हूं कि आप कुछ खास करेंगे प्रभु, and we really thank God for this night. और हम वास्तविकता में धन्यवाद करते हैं इस रात्रि के लिए। May everybody return back home with a special blessing. काश हर एक कोई अपने घर में एक खास बरकत को लेके जा सके। Bless Pastor Kaka, Lord, पास्टर खाका को आप बड़ी बरकत दें and other ministers who have worked together tirelessly for these meetings. और बाकी उन सेवकों के लिए खुदावंद जिन्हें बिना थके हुए प्रभु अपने योगदान दिया इस सभाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह। Now, Lord, we invite you, the Holy Ghost. आप प्रभु हम आपको जो पवित्र आत्मा है आपको आमंत्रित करते हैं। You, the teacher, teach us your word, Lord. आप जो शिक्षक हैं अपने वचन को हमें सिखाएं। Under your blood we bring us our families, our churches. आपके लहू के नीचे हम अपने आप को, अपने परिवारों को और अपनी कलीसिया को लेके आते हैं। Deal with us in your own gentle way. अपने मधुर तरीके से प्रभु हमसे आप बातचीत करें। In the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से I ask this prayer. हम इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you all. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। Once again, a wonderful time to be with you all. और फिर से एक और बढ़िया समय खुदा ने हमें दिया कि हम आपके साथ बिता सकें। For this portion of the bride in this state. इस दुल्हन के हिस्से के लिए जो कि इस राज्य में प्रदेश में पाया जाता है। And we really thank God for a wonderful time of fellowship with you all. और हम खुदा का वास्तविकता में धन्यवाद करते हैं कि अद्भुत समय संगति का आप लोग के साथ जो मिला। And it is my prayer, और ये मेरी प्रार्थना है, may these meetings be of some blessings to you all. काश ये सभाएं आपके लिए कुछ बरकत का बाइस बन सकें। Amen. आमीन। And the purpose of these meetings, और इन सभाओं का जो मकसद है, sometimes in the previous times we used to call it revival meetings. और पहले जमाने में इन सभाओं को कहा जाता था बेदारी की सभाएं। Well, for me, the revival would mean getting ready for a final showdown. और मेरे लिए बेदारी का मतलब ये होगा कि अंतिम शोडाउन के लिए तैयारी होना। And I praise God और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ for our precious Pastor Kaka, अपने बहुमूल्य पास्टर भाई खाका के लिए। a wonderful man of God, amen. एक बहुत ही अद्भुत जन खुदा के। When Brother Peter and Brother Thompson came to the state, जब भाई पीटर और भाई थॉमसन इस स्टेट में आए and they ministered the word,
और उन्होंने आकर यहाँ पर वचन को फैलाया और सेवकाई करी। Few people came out. कुछ लोग बाहर निकल के आए One of them was Pastor Kaka. और उनमें से एक भाई पास्टर खाका भी थे। Others returned back, बाकी लौट के चले गए back to the world. वापस संसार में। But our precious pastor stayed on with this message. लेकिन हमारे बहुमूल्य पास्टर इस वचन में लगातार बने रहे, तत्पर रहे। And initially he suffered a lot. और शुरुआत में उन्होंने बहुत कुछ सहा, But by the grace of God, लेकिन खुदावन के अनुग्रह से God has established him खुदावन ने इन्हें स्थापित किया है and given him a ministry and fruits. और उनको सेवकाई दी और फल दिए हैं। So we really thank God for such a man of God. सो वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं ऐसे खुदा के जन के लिए। We thank God for other men हम खुदा का धन्यवाद करते हैं दूसरे पुरुषों के लिए who are now pastors जो कि अब पास्टर्स हैं and leading their flocks. और अपनी गल्लों की रखवाली कर रहे हैं। Chhattisgarh, Jharkhand, छत्तीसगढ़, झारखंड some people even from Orissa. और कुछ लोग यहाँ तक उड़ीसा से भी हैं। God bless everybody. खुदा हर एक को बड़ी बरकत दे। Sorry for my throat. मेरे गले के लिए माफी चाहूंगा I've been speaking a lot these days. क्योंकि इन दिनों मैं बहुत ज्यादा बोलता रहा हूँ। And these are 5 meetings. Before that, I was in Andhra for 10 days. और ये तो 5 सभाएं हैं हुई हैं, लेकिन इससे पहले मैं 10 दिन आंध्रा में था। And before that seminar, before that 3 days meeting, our April, May just was packed together. और इससे पहले आप पाएंगे कि लीडरशिप सेमिनार था और उससे पहले हमारी 3 दिन की सभाएं, तो आप पाएंगे मई, अप्रैल, मई, जून, हम ये बिल्कुल पैक्ड सीजन रहा है। That's right. बिल्कुल सही And, बात है। but I really thank God. लेकिन मैं वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करता हूँ, Gave me a time to minister to you. उन्होंने मुझे समय दिया कि मैं आपके साथ सेवकाई कर सकूं। Maybe I don't know, शायद मैं नहीं जानता, but this year I may go to Africa इस साल शायद मैं अफ्रीका जाऊं, because I have a call from that country. क्योंकि उस देश से मुझे पुकार है And there are some brothers who are praying. और कुछ भाई है जो प्रार्थना कर रहे हैं। And may God give us grace और काश खुदावंद हमें अनुग्रह प्रदान करें to take this gospel to other places. कि हम इस सुसमाचार को दूसरे स्थानों में ले जा सकें। Just like you, ठीक आपकी तरह there are churches, कलीसियाएं हैं, and very big churches in fact. और मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं। One church may be having 5,000, one church may be having 10,000 believers. एक चर्च में शायद 5,000 विश्वासी हैं और एक चर्च में शायद 10,000 विश्वासी हैं। That's right. बात सही है। All believing this message. हर एक कोई और सब के सब इस संदेश पे विश्वास करते हैं। People have worked in the field. लोगों ने क्षेत्र में काम किया है And we thank God for the work which we are doing in this country और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं जो काम हम इस देश में कर रहे हैं to finish the gospel here. ताकि सुसमाचार को यहाँ पर पूरा करें। And I really thank God और मैं वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करता हूँ for people like you, आप जैसे लोगों के लिए, for people who are in this fight. लोग बाग जो इस लड़ाई में, इस युद्ध में लगे हुए हैं। And we really thank God for some real laborers. और वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं कुछ वास्तविक सेवकों के लिए। People like Brother Kaka, people like Pastor here, Pastor Prakash from Bhilai, yes. और पास्टर खाका जैसे लोग और भिलाई से पास्टर प्रकाश जैसे लोग, Pastor Amit Topo, पास्टर अमित टोपो who's actually now looking 2 churches. जो कि अब 2 कलीसियाओं की देखरेख कर रहे हैं। I told him to do that. मैंने उनसे कहा करने को, And God really bless my brother that he's doing it. और खुदा मेरे भाई को बड़ी बरकत दे जो इस कार्य में कर रहे हैं। God bless brother Pastor Amit Topo, yes. खुदा बड़ी बरकत दे पास्टर अमित टोपो को। And then our precious Pastor Arvind Tikkan, just recently anointed from Bilaspur, yes. और अभी हाल ही में बिलासपुर से पास्टर अरविंद टिग्गा जो अभिषेकित किए गए हैं। Amen. आमीन। And I believe there are other ministers in the making. और मैं देख पा रहा हूं कि और सेवक हैं जो कि अब बन्नत में आगे बढ़ रहे हैं, Because the harvest is plenty, क्योंकि फसल तो बहुत ज्यादा है laborers are few. लेकिन वहां पर काम करने वाले सेवक कम हैं। And the Lord said, pray the Lord of the harvest that he send laborers. और खुदा ने कहा कि प्रार्थना करो कि जो फसल का मालिक उससे प्रार्थना करो कि कटाई करने वालों को भेजे। And I personally feel और मैं व्यक्तिगत तौर से महसूस करता हूं the purpose of these meetings is twofold. इस सभाओं का जो उद्देश्य वह दोहरा मतलब है। One part is to revive the bride, एक हिस्सा है दुल्हन को बेदार करने के लिए, and the second part is seeking that last soul. और दूसरा हिस्सा यह है कि उस अंतिम रूह को खोज के लाना। And God is going to bring in one of these days, और खुदा उनको इन्हीं किन्हीं दिनों में लेके आएंगे and then we'll not have these meetings. और तब हमारे पास ये सभाएं नहीं होंगी। It'll be one big meeting एक महान बड़ी सभा होगी when you meet him in the air. जो हवा में सभा होगी। So we are preparing for that hour. God bless you.
सो हम उस घड़ी के लिए तैयारी कर रहे हैं। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Yes, Brother Pastor Pradeep Dodrai, और पास्टर प्रदीप डोडराय, just few months back he was anointed a pastor, yes. और कुछ ही महीने पहले उनको अनॉइंट किया गया एक पास्टर के रूप में, And he's looking after Daltonganj. और वो डाल्टनगंज को देख रहे हैं। Yes. जी हाँ। So we really thank God for the ministers and the ministry. सो हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं सेवकों के लिए और सेवकाइयों के लिए। Pastor R.K. Samuel, पास्टर आर के सैमुअल, who has been running his car in Orissa, जो कि अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं उड़ीसा में, God bless him. खुदा उनको बड़ी बरकत दे, And his ministry, yes. और उनकी सेवकाई को। Then many ministers in Orissa, yes. और फिर कई बहुतेरे सेवक जो उड़ीसा में पाए जाते हैं, Yes, yes, and there are many of them. और में से बहुतेरे हैं, And we talk with them, we have interacted with them, और हमने उनसे बातचीत करी है, and the message has gone there, yes. और संदेश वहां पर गया है। But you see, Orissa had the message. आप देखिए उड़ीसा के पास संदेश था। It's not that we are introducing the message in that state. ऐसा नहीं है कि हम संदेश का परिचय दे रहे हैं उस देश में, उस प्रदेश में। What we are trying to do is just pick up at a little higher level. लेकिन हम जो काम कर रहे हैं कि उड़ीसा को एक ऊंचे स्तर पे लेके जा रहे हैं। Another level which is called the rapture level. और एक और स्तर जिसे कहते हैं रैप्चर वाला स्तर। And I thank God that people are hearing it. और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि लोग इसको सुन रहे हैं। God's name be really praised. God bless you. खुदा का नाम वास्तविकता में जलाल पाया। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। What can we give to you? हम आपको क्या दे सकते हैं? But my prayer is may God fill your stores. लेकिन मेरी प्रार्थना यह है खुदा आपके खत्तों को भर दें। God's name be really praised. खुदा का नाम वास्तविकता में जलाल पाए। My precious brother Peter, who's now with the Lord, he came here. मेरे प्यारे भाई पीटर जो कि अब प्रभु के पास चले गए हैं, वो यहाँ पर आए थे। God bless that brother. खुदा उस भाई को बड़ी बरकत दे। From whose ministry brother Kaka came out. जिनकी सेवकाई से भाई काका निकल के आए। And God opened the revelation to him. और खुदावंद ने मुकाशफे को उनके सामने खोला। And then I thank God for brother Donny, brother Nishant. और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ भाई टोनी के लिए, भाई निशांत के लिए, who have been coming in this place जो कि इस जगह पे आए हैं to throw some water ताकि कुछ पानी को फेंके time to time. God bless them. समय बे समय खुदा उनको बड़ी बरकत दे। God bless these laborers. खुदावंद इन सेवकों को बड़ी बरकत दे। And God bless you all. और खुदा ना सबको बड़ी बरकत दे। Wonderful songs, बहुत ही अद्भुत गीत, full of meaning, मतलब से भरे हुए, but little long songs. लेकिन थोड़े लंबे लंबे गीत होते हैं आपके। That's right. बात ठीक है। We are sort of used to small songs. हम used to हैं छोटे गीतों के लिए। That's right. 2 or 3 verses. 2-3 आयतें। But we have long songs. लेकिन लंबे लंबे गीत यहाँ होते हैं। But nevertheless we enjoyed them. फिर भी हमने उसमें आनंद लिया। God really bless you. You have your way of worshiping. खुदा ने आपको बड़ी बरकत है। आपके पास अपना तरीका है खुदा की उपासना करने I का। have nothing to say against that. तो इसके विरोध में कहने का मेरे पास कुछ भी नहीं है। Just worship him like you want to. और जैसे आप चाहें उसकी इबादत करें। God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Amen. आमीन। Now, apart from songs, we have the preaching and hearing the word. अब गीत के अलावा हमारे पास वचन का प्रचार और उसका सुनना है। Because Brother Branham said, क्योंकि भाई ब्रैनम ने कहा the main thing is the word. जो मुख्य चीज है वो वचन है। That's why the meeting is held. इसलिए सभा का आयोजन किया जाता है। That's what we are here for. और इसी के लिए हम यहाँ पर हैं। Forgive my throat. मेरे गले के लिए माफ करना। Yes, it goes like that. ऐसे ही चलता है। But still it's making a noise. लेकिन फिर भी ये कुछ आवाज दे पा रहा है। So try to hear the voice. तो आवाज को सुनने की कोशिश करें। God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। And we pray that may we meet in the air. और मेरी प्रार्थना है कि काश हम हवा में खुदा से इस्तकबाल करें। God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। In this last trips I have been meeting tribals. और इस पिछली ट्रिप्स में मैं ट्राइबल्स मतलब आदिवासियों से मुलाकात कर रहा हूं। Those who have been in jungles. जो जंगल में रहे हैं। But they are the children of God. लेकिन वो खुदा के संतान हैं। And I really love them. और मैं वास्तविकता में उनसे प्रेम करता हूं। My prophet loved them. मेरे नबी ने उनसे प्रेम किया। They love those tribes. उनको प्रेम था उन आदिवासियों से। That's right, and that's why he wanted to go to Africa. और यही कारण था कि वो अफ्रीका जाना चाहते थे। Send the message to them. ताकि संदेश को उनके पास भेजें। Yes, there are some elect amongst you. जी हाँ, आपके बीच में कुछ चुने हुए हैं। And God wants to talk with them. और खुदा उनसे बातचीत करना चाहते हैं। Children of God. खुदा के संतान। Sons and daughters, precious ones. पुत्र और पुत्रियां, बहुत ही बहुमूल्य बच्चे। And that's why we are here. और इसलिए हम यहाँ पर हैं। To show you something from the word. ताकि आपको कुछ वचन से दिखा सकें। God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। This is not a ministerial meeting.
ये कोई मिनिस्ट्रियल सभा नहीं है where we talk something about the ministry, जबकि हम सेवकाई को लेकर कुछ बातचीत करें, but this is something to do with the bride as a whole. लेकिन ये इसका संबंध है दुल्हन से पूर्णतया से। And I believe you are reading your Bibles और मैं सोचता हूं कि आप अपनी बाइबल को पढ़ते होंगे and you're reading the messages. और आप संदेशों को भी पढ़ते होंगे, Because you can't make these songs without reading the messages. क्योंकि आप इन गीतों को बिना संदेश पढ़े हुए नहीं बना सकते। So we really thank God for that. तो हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इसके God लिए। bless you, brother. God bless you, sister. खुदावंद बड़ी बरकत दे आपको भाइयों, खुदावंद बड़ी बरकत दे आपको बहनों। God bless you, Chhattisgarh. छत्तीसगढ़, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। That Chhattisgarh which has a revival. वो छत्तीसगढ़ जिसमें बेदारी है, God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Salute to the bride of Christ. प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन को सलाम। Bless you and a shalom. आपको खुदा ने बड़ी बरकत दे और शालोम। Let's open our Bibles. आइए अपनी बाइबलों को खोलेंगे। It's a wonderful time. ये बहुत ही अद्भुत समय है। And let's turn to the book of Luke, chapter 9. और निकालेंगे लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय। And we are going to read from verse 11 to verse 17. 11वीं आयत से 17वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। And the people, when they knew it, followed him, and he received them, and spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing. And when the day began to wear away, then came the 12 and said unto him, Send the multitude away, that they may go into the towns and country round about, and lodge and get victuals, for we are here in a desert place. But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more but 5 loaves and 2 fishes, except we should go and buy meat for all this people. For they were about 5,000 men. And he said to his disciples, Make them sit down by 50s in a company. And they did so and made them all sit down. Then he took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed them and brake, and gave to the disciples to set before the multitude. And they did eat, and were all filled. And there was taken up of fragments that remained to them 12 baskets. 10वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वो उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वो आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा के राज की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुष के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, और स्वर की ओर देखकर धन्यवाद किया, और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। तब सब खाकर तृप्त हुए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाईं। Lord Jesus, we thank you for the reading of the word. प्रभु यीशु मसीह वचन के पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। We know nothing, हम कुछ नहीं जानते, but we are babes such as would learn. लेकिन हम ऐसे बालक हैं जो सीखना चाहते हैं। Come, Lord, and break this bread of life for us. प्रभु आए और इस जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़े। Under your blood we come. आपके लहू के नीचे हम आते In हैं। the name of Jesus Christ, our Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं। God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Amen. आमीन। If God give me grace, अगर खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करें, I want to preach a subject to you in this last night of this series. इस श्रृंखला में अंतिम रात को मैं आपके सामने, प्रभु ने अगर अनुग्रह दिया तो मैं एक विषय को प्रचार करना चाहता हूं। The 3 breakings of bread in the ministry of the Son of Man. मनुष्य के पुत्र की सेवकाई में
3 बार रोटियों का तोड़ा जाना। And may God give me grace to show you these 3 breakings of bread. और अगर खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करें कि मैं आपको ये 3 बार रोटियों को तोड़े जाने को दिखा सकूं, And how it applies to this last day. और कैसे ये लागू होता है इन अंतिम दिनों में। Now please be careful आप बड़े सतर्क हो जाएं and try to hear the word. और वचन को सुनने की कोशिश करें। God really bless you, brother and sister. भाइयों और बहनों, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। I like to move further with you. मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। I think all of you are very familiar with this instance. मैं सोचता हूं कि आप सब के सब इस वाले हिस्से से वचन के बहुत ज्यादा आप इसको जानते हैं और पढ़ा है आपने। It's in Luke 9. ये लूका 9 में है, It's in John chapter 6. और ये यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय में है, It's in Matthew also. और ये मत्ती 14 में भी है। So you find this everywhere. तो आप इसको हर जगह पाएंगे। A very famous instance in the life of our Lord Jesus Christ. एक बहुत ही प्रसिद्ध वृत्तांत हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन का। Actually, it started like this. वास्तविकता में इस प्रकार से चालू हुआ। The disciples had returned after a campaign meeting. जो चेले हैं वो एक कैंपेन, एक सभा को के बाद लौट करके आए, And the Lord told them, और प्रभु ने उनसे कहा, I think you must be a little tired. और मैं सोचता हूं कि तुम थोड़े थके हुए होगे। Now come here in a desert place अब यहाँ पर एक रेगिस्तान वाले स्थान में आओ and rest for a little while. और थोड़े समय के लिए विश्राम करो। But you see, while he was there, लेकिन आप देखिए, जबकि वो वहां पे थे, again the news spread फिर से खबर फैली and people started coming to him. और लोग बाग उसके पास आने लगे, And he preached to them and he healed them. और उसने उनके सामने प्रचार किया और उन्हें चंगाई दी। How this thought came to me, कैसे ये विचार मेरे पास आया? I was sitting in the hotel room मैं होटल के कमरे में बैठा था and I was thinking, और मैं सोच रहा था, this brother organized a meeting इस भाई ने इस सभा का आयोजन किया, and now it's 3 days since people are hearing. और अब ये 3 दिन हो चुके हैं जबकि लोग बाग सुन रहे हैं। We had day before yesterday night, हमारे पास परसों रात था, whole day yesterday, और कल पूरा दिन, and now the 3rd day. और आज तीसरा दिन। And I was thinking, और मैं सोच रहा था, yes Lord, one day there was a big crowd that came to you, और मैंने कहा, हाँ प्रभु, एक दिन ऐसा था जबकि एक बड़ी भीड़ आपके पास आई, and for 3 days you preached to them. और 3 दिन तक आपने उनके सामने प्रचार किया। But then I was thinking, at the end of the 3rd day, लेकिन मैं सोचने लगा, तीसरे दिन के खात्मे पर you had compassion on the people, आपको दया आई लोगों के ऊपर, and you started saying और आप कहने लगे to your disciples, अपने चेलों से, now just don't give them the word, now give them something to eat. अब केवल उनको वचन ही नहीं लेकिन आप कुछ खाने को भी दो। And then when I was thinking that thought, और जब मैं इस विचार के बारे में सोच रहा था, I was actually taking a bath. मैं वास्तविकता में उस समय नहा रहा था। Suddenly a voice started speaking, अचानक से एक आवाज बोलने लगी, and something started breaking. और कुछ चीज खुलने लगी। God has a way of opening things. खुदा उनके पास एक तरीका है चीजों को खोलने का, And now what he opened, I'm going to show it to you. और जो कुछ उन्होंने खोला मैं आपको दिखाऊंगा। And may God give me grace to show it to the bride in this hour. और काश खुदा मुझे अनुग्रह दे ताकि दुल्हन को इस घड़ी में इसको दिखा For सकूं, we are trying to minister to the bride, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि सेवकाई करें दुल्हन को, the elect people. जो चुने हुए लोग हैं। God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Amen for that thing. आमीन इस बात के लिए। You find that after those 3 days, आप पाएंगे उन 3 दिन के बाद, and the congregation was going on hearing the word, और सभा जो थी वो संदेश को सुनी जा रही थी, he had compassion on the people. उसको दया आई लोगों के ऊपर, And when he had compassion, he said और जब दया आई तो उसने कहा to his disciples, अपने चेलों से, please give them something to eat. कृपया करके उनको कुछ खाने को दो। Now, precious brother, remember the nature of our God. अब मेरे प्यारे भाई, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को ध्यान से देखने की कोशिश करें। One more thing started in my mind. एक और चीज मेरे दिमाग में चलने लगी। Our brother here, हमारे भाई ये जो यहाँ पर हैं, today is his birthday, brother Ajay Benjamin. भाई अजय बेंजामिन का आज बर्थडे है, That's right. And from last night, और कल रात से they have cut his cake 3 times. हमने उनका केक 3 दफा काटा। Is that right? क्या बात सही है? You see, nothing happens by chance. आप देख, कोई भी चीज बाई चांस नहीं होती, Something is there. There's a meaning somewhere. और कोई चीज कहीं पर है और किसी का मतलब है इस बात का। So suddenly, this God started showing me certain things. और अचानक से खुदावंद मुझे कुछ दिखाने लगे, And when I started seeing those things, wow! और जब मैं उन चीजों को देखने लगा तो मैंने कहा, वाह, Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम मुबारक हो। And may God give me grace to show this to you. और काश खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करे ताकि मैं इसको आपको दिखा सकूं। He asked his disciple, उसने अपने चेलों से कहा, actually it was Philip first, वास्तविकता में ये पहले फिलिप्पुस था, give them something to eat. इन्हें कुछ खाने को दो। Remember, याद रखिए, whenever God is asking you for something
impossible, there's something going on in his mind. आप देखिए, जब कभी खुदावंद आपसे मांग कर रहे हैं किसी अविश्वसनीय की चीज के बारे में, तो खुदा के विचारों में कुछ चल रहा है. Let me read a verse for you. आइए मैं आपके लिए एक आयत को पढ़ता हूं. Just 1 minute, please. It's not in the book of Luke. Turn with me, I think, to the book of John, chapter 6. मेरे साथ, ये लूका की इंजील में नहीं है, मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील, उसका 6वां अध्याय. Yes. I am reading from verse 5. मैं 5वें आयत से पढ़ रहा हूं. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, When shall we buy bread that these may eat? जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? And this he said to prove him. Amen. For he himself knew what he would do. उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा. You see, आप देखिए, when God is demanding something impossible from you, जब खुदावन डिमांड कर रहा, मांग कर रहा है किसी असंभव चीज का आपसे, something is going on in God's mind. कोई चीज है जो खुदा के विचारों में चल रही है. And he's starting this talk with Philip like this. और वो फिलिप्पुस से इस बातचीत को यूं चालू करते हैं, From when shall we have this money हमारे पास ये पैसा कहां से आएगा to get this bread for this people? ताकि रोटी मोल लेके आए इन लोगों के लिए. And the disciples had no money. और चेलों के पास कुछ पैसा था नहीं. Understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Their funds were depleted. उनके जो पैसा था वो खत्म हो चुका था, कम हो चुका था. They could pick out their pockets and show like that. वो अपनी खाली जेबें निकाल के दिखा सकते थे. The Lord smiled. प्रभु मुस्कुराए. He said, I want to tell you something. उसने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं. Today I'll introduce to you another economy. उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज मैं तुम्हारे सामने परिचय देना चाहूंगा एक और अर्थव्यवस्था का. Without rupees, without dollars, you will have bread. बिना रुपए के, बिना डॉलर के तुम्हारे पास रोटी होगी. Whatever your need is, जो कोई आपकी जरूरत है, it's not the rupees and cash that will buy it, it's my word. ये रुपए और ये वो मुद्रा नहीं है जो तुम्हारे पास है, लेकिन ये मेरा वचन है जो उसको लेके आएगा. He was introducing another economy. वो एक और अर्थव्यवस्था का परिचय दे रहे थे. And those who know the message, और वे जो संदेश को जानते हैं, when Brother Branham started talking about his new ministry, जब भाई ब्रैनम ने अपनी नई सेवकाई के बारे में शुरू किया बात he करना, said a time is coming, उन्होंने कहा एक समय आ रहा है, which is now, जो कि अब है, when fishes and loaves will once again multiply. जबकि मछलियां और रोटियां एक बार और बढ़ाई जाएंगी. When people economies will fail, जब रुपए और पैसा टूट जाएगा, and people will not have jobs, और लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, money will fail, पैसा टूट जाएगा, God will look after his elect खुदावंद अपने चुने हुओं की देखरेख करेंगे by his word, अपने वचन के द्वारा, like he did the children of Israel, जैसे उसने इजराइल के बच्चों के साथ किया, like he did here. जो उसने जैसे यहां पर किया. He's trying to tell Philip, वो फिलिप्पुस को बताने की कोशिश कर रहे हैं. I know मैं जानता हूं, when I'm asking you this question, जब मैं ये सवाल तुमसे पूछ रहा हूं, you start thinking from where to get that money. तुम सोचने लगोगे कि ये पैसा कहां से लाया जाए. But our actual question is not that. लेकिन मेरा वास्तविक सवाल ये नहीं है. My actual question is this. मेरा वास्तविक सवाल ये है, Give them something to eat. उन्हें कुछ खाने को दो. They said, even this much money is insufficient, Lord, उन्होंने कहा कि जो पैसा हमारे पास है ये भी काफी नहीं पड़ता प्रभु, by which we can buy so much bread. जिसके द्वारा हम इतनी सारी रोटी मोल लेके आए. So Philip said like that, सो फिलिप्पुस ने इस प्रकार से कहा, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, 200 दिनार की रोटियां भी उनके लिए पूरी नहीं होंगी, that every one of them may take just a little. कि उनमें से हर एक को थोड़ा थोड़ा मिल जाए. Are you listening? क्या सुन रहे हैं आप? He's thinking in those terms. वो इस मायने में सोच रहा है. At the same time, there was another disciple. और उसी समय एक और चेला था. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, और में से एक चेला जो कि अंद्रयास था, जो कि शिमोन पतरस का भाई था, saith unto him, उससे कहा, there is a lad here, यहाँ पर एक लड़का है, which hath 5 barley loaves and 2 small fishes. जिसके पास 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां हैं. But what are they among so many? लेकिन इतने सबके सामने ये क्या है? There was a little boy there, वहां पर एक छोटा लड़का था.
carrying a tiffin. जो अपने साथ एक टिफिन को लेके जा रहा था, And that tiffin had 5 loaves and 2 fishes. और उस टिफिन के डब्बे में 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। Is that right? ये बात सही है? And Andrew said, और अंद्रयास ने कहा, but it's not sufficient. लेकिन प्रभु इतने सारी भीड़ के लिए तो काफी नहीं है। I wonder tonight, मैं अचरज करता हूं आज रात्रि, who could be that lad tonight? आज रात वो लड़का कौन होगा? The lad carried 5 loaves and 2 fishes. उस लड़के के पास उसके डब्बे में 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। A small boy in half pants एक छोटा लड़का निक्कर में, हाफ पैंट में, came to hear the Son of Man, मनुष्य के पुत्र को सुनने आया था, and is carrying a tiffin with him, और अपने साथ एक डब्बे को लेके जा रहा है, which his mother had packed for him, जो उसकी माँ ने उसके लिए बांधा था, that if you find time you can eat it. जब तुम्हें समय मिले बेटा, भूख लगे तो उसको खा लेना। So he was carrying his tiffin with him. तो वो अपना डब्बा अपने साथ लेके जा रहा था। But the best part, लेकिन सबसे उत्तम हिस्सा, one of the apostles उनमें से एक चेला looked at his tiffin, उसके डब्बे की ओर देखा, and he knew, और वो जानता था, maybe he asked him, शायद उसने उससे पूछा, what have you got? बेटा तुम्हारे पास क्या है? 5 loaves, he must have opened his box. उसने अपना डब्बा खोला होगा, 5 loaves and 2 fishes. 5 रोटी और 2 मछली। God bless you. खुदा ने तुमको बड़ी बरकत You दे, can have your meal. तुम अपना भोजन खा सकते हो। So he shut the box and sat down. तो उसने अपना डब्बा बंद किया, वो बैठ गया। So when our Lord Jesus demanded, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मांग की, what have we here? हमारे पास यहाँ पर क्या है? Andrew said, अंद्रयास ने कहा, nobody has nothing. किसी के पास कुछ भी नहीं है, Nobody has nothing. किसी के पास कुछ भी नहीं है, But there's a boy here लेकिन यहाँ पर एक लड़का है who has 5 loaves and 2 fishes. जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। 5 and 2 is 7. 5 और 2 मिलके होते हैं 7। Are you listening, please? क्या समझ रहे हैं आप इसको? And a boy is carrying that tiffin. और एक लड़का है जो उस डब्बे को लेके चल रहा है। I want to go with you further in the message. मैं आपके साथ संदेश में आगे चलना चाहता हूं। He told, bring that tiffin. उसने कहा उस डब्बे को लेके आ जाओ। Let me first show you the physical, then I'll show you the spiritual. पहले मैं आपको भौतिक दिखाऊंगा, फिर मैं आत्मिक दिखाऊंगा। देखो ब्रदर, ये मैंने सालों साल पहले प्रचार किया, मेरे चर्च वाले भी यहां बैठे हैं और ये गवाह हैं कि क्या बातें वो पूरी हुई या नहीं हुई। यहां कोई कहेगा पहला पैसा कमाऊं तब मैं घर बनाऊं। मैंने अपने चर्च में एक बात बोली, क्या हवा से घर गिरते हैं? और ऐसा ही हुआ। हमारे कलीसिया के कई लोगों के घर बने, खास उन दिनों में जब लॉकडाउन चल रहा था। दुनिया मर रही थी, हमारे घर बन रहे थे। आपका बना, कई औरों का बना, भाई का भी बना। खैर, किससे बनता है? पैसे से। अरे अगल नहीं लगेगा, तुम्हारी समझ में नहीं आई बात, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। खुदावन ये नहीं कह रहा पैसा, खुदावन ने कहा तुम्हें चाहिए क्या, ये बोलो। क्या आसमान से पैसा गिरता है? जी हां गिरता है। ऐसा ही हुआ। कहां से आएगा? आ गया, काम बन गया, हो गया। मैं यहां कोई प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रचार करने नहीं आया, तो मेरा संदेश तो कुछ और है। लेकिन ध्यान से सुनना। अरे भाई, घर बनाने के लिए पहले कमाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, तब जाके घर बनता है। ऐसे थोड़ी ना घर बनता है। कुछ का यूं ही बन गया। मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे ये बातें, इसको ध्यान से सुनना। बहुत दिन पहले मैंने अपने चर्च में और फिर मैंने आंध्रा में भी जाके जगह जगह ये प्रचार किया, एक भेद जो मोहरों में से खुला कि ये पाप का पुरुष, अब आप जानते हो पाप का पुरुष कौन है? दुनिया को पैसे से खरीदना चाहता है। और तब वहां भाई ब्रनम ने एक लाइन बोली, वो नहीं जानता कि खुदा के लोग पैसे से नहीं
लहू से खरीदे जाते हैं। और जब आपने अपना लहू बहाया हमारे उद्धार के लिए, जिस चीज की भी हमें जरूरत है इस मसीहत के जीवन की चाल में, जब तक हम यहां से उड़ ना जाएं, सब चीज का दाम चुकाया जा चुका है। यानी कि आगे बढ़ो। विधवा से कहा, क्या है तेरे पास? बोले इतना सा तेल। बोले काफी है। इतना सा आटा, बस काफी है। अरे इतने से आटे और इतने से तेल से तो हम पूरे अकाल बैठ के खाएंगे, क्योंकि हमारे खुदा का एक चरित्र है, मल्टीप्लायर, बढ़त करने वाला, गुणा करने वाला। आपकी समझ में आ रही है? तो इकोनॉमीज फेल होने दीजिए। एक और इकोनॉमी है, जिसे खुदा की इकोनॉमी कहते हैं, जो इकोनॉमी दुल्हन की रक्षा करेगी इन लहमों में जो अब आने वाले हैं। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? अगर ये प्रचार हो रहा है आज शाम, कुछ समय के बाद आप देखना क्या होगा। समझ में आ रही है आपके? I'll come back to sit down, please. कृपया बैठ जाइए। But there was a boy there लेकिन वहां पर एक लड़का था who had a small tiffin, जिसके पास छोटा डब्बा था, 5 loaves and 2 fishes. 5 रोटी 2 मछलियां। The Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, bring them. उनको लेके आओ मेरे पास। The lad handed over his tiffin. जो छोटा लड़का था उसने अपना डब्बा सौंप दिया। ध्यान रखना, खुदगर्जी से कुछ नहीं मिलेगा, हाँ जी, लेकिन मनुष्य के पुत्र को जब कुछ तुम देते हो तो वो बढ़ा के तुम्हें वापस देता है। आमेन आमेन। अच्छा एक चीज बोलूं आपसे, उन 5 रोटी 2 मछली से कितने लोगों ने खाना खाया? 5,000। रोटी कितना बढ़ गई होगी? अगर एक बच्चा 5 रोटी खाता है तो बड़ा तो 10 खाता होगा, तो रोटी कितनी बढ़ गई होगी? सच है। फिर मेरा दूसरा सवाल यह कि बेटे बच्चे ने 5 रोटी खाई, फिर क्या दी? 5 खाई ज्यादा, क्योंकि हर बार बढ़ के एक चेला आता था रोटी लेके, और लोगे और लोगे। आमेन। इसलिए जब खुदा ने कहा अपना दसवांश मेरे भंडार में लाओ, किस लिए? कि मैं उसे बढ़ा के तुम्हें वापस करूं। मैं और मेरी कमाई, मेरा पैसा, भाई आपका पैसा, आपका हक, किसने मना किया? लेकिन खुदा ने एक नियम रखा जो कि दसवांश है, जो कि नए ऐदनामे में भी है। जब आप अपना 10वां हिस्सा, खुदा की पॉलिसी चेंज नहीं होती, दुनिया की चेंज होती है। 18%, कहीं 20%, कहीं ये परसेंट, कभी 22%, हर जगह परसेंटेज अलग अलग है। खुदा का हजारों साल से एक ही है, 10%। और मलाकी में कहा, मुझे परख कर देखो, दसवांश भंडारों में लाओ और देखो मैं तुम्हें कैसी बरकतें देता हूं। कई लोगों का एक विचार है, मैं अपना 10वां हिस्सा पास्टर को देता हूं, ये पास्टर मालूम मेरे दसवांश पे पलता है। पास्टर बेटा तुम्हारे दसवांश पे ना पला ना पलेगा, उसको पालने वाला है खुदा। तुम दसवांश मत दो, वहां और मिलेगा खुदा की तरफ से। यह ध्यान रखना, दसवांश देके आप पास्टर का फेवर नहीं कर रहे, अपना फेवर करवा रहे हो।
खुदा को जब 10वां देते हो, वो उसका 100 बना के तुम्हें लौटाता है। ये दिमाग में नहीं घुसता लोगों के, समझ मारिए आपके। इसलिए अब्राहम की संतान होने के नाते, क्योंकि पॉइंट आया इसलिए मैंने बोल दिया, जब आपका पास्टर है, उस पास्टर को अपना 10वांश दो। क्या बोला? 10वांश दो। मैं और आपसे पैसे की मांग नहीं कर रहा, हम पैसे की उगाई करने यहां नहीं बैठे, लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बोल रहा हूं। अपना 10वां हिस्सा, चाहे 1 रुपया हो तो 10 पैसा, 100 रुपया हो तो 1 रुपया, 1000 तो 100 रुपये, जो भी 10वां बनता है, आप अपने पास्टर को सपोर्ट करो। वहां से आपको रोटी और दाखरस मिलती है। क्या सच्चाई है? क्या ये बाइबल है? ये बाइबल है। खुदा ने कहा तुमने मुझे लूटा है, तुम चोर हो। कहां लूटा? 10वांश में और उठाई हुई बेटों में। यह है लुटेरा, लुटेरी आत्मा। और खुदावन का धन्यवाद हो, मसीह की दुल्हन लुटेरों की नहीं है। मसीह की दुल्हन के पास मुकाशफा है। जब मैं अपना 10वां देता हूं, खुदा मुझे 100 करके लौटाता है। सुनिए ध्यान से, और यह सच है कि जिन्होंने इस काम को अपने जीवन में किया, आज वो उठते 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 जाने कहां पहुंच चुके हैं। क्योंकि ब्रदर, जॉब ऐसे नहीं लगती। इंटरव्यू पे जाइए, 10 एप्लीकेशन है, काम कौन करेगा? खुदा। ये बढ़त। दूसरी चीज, पैसा घर में आ गया। हमारा तो खूब पैसा आता है, लेकिन महीने की 10 या 20 तारीख के बाद आधा हो जाता है। क्या हुआ? किसी की टांग टूट गई, किसी का पेट दर्द में एक 10,000 रुपए का बिल निकल गया, किसी की ये तकलीफ, किसी का वो, बहुत जल्दी निकल जाता है। समझ में आया? ये क्यों निकल जाता है? खुदा ने कहा मैं उसे उड़वा देता हूं। पैसा भी जो आया बचा रहे, ये भी आपकी बरकत है। मैंने पॉइंट आया इसलिए मैंने आपके सामने रखा इस बात को। इसलिए ये ध्यान रखें कि खुदावन के सामने, देखिए छोटे बच्चे ने क्या किया। He gave his tiffin to the Lord. उसने अपना डब्बा जो है वो प्रभु के लिए दे दिया। Whenever you give something to the Lord, जब कभी आप कुछ भी प्रभु को देते हैं, He multiplies it, वो उसको गुणा करते हैं, बढ़ाते हैं, and gives it back to you. और आपको वापस दे देते हैं। Is that right? क्या बात सही है? Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। Now, but we are going to see something else tonight. लेकिन आज रात्रि हम कुछ और देखेंगे। And may God give me grace to show you certain things. और काश खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करे ताकि मैं आपको चीजें आपको दिखा सकूं। How many people were there? कितने लोग थे वहां पर? 5,000. 5,000। And in Luke it's written, और लूका में ये लिखा है, it says in verse 14, let's read verse 14. और 14वीं आयत में लिखा है, हम 14वीं आयत को पढ़ते हैं। For there were about 5,000 men. और वे लगभग 5,000 के लगभग लोग थे। And he said to his disciples, तब उसने अपने चेलों से कहा, make them sit down उन्हें बिठाओ by 50s in a company. 50-50 करके पाती पाती बैठा दो। So when he told them to sit down, तो जब उसने उनसे कहा कि तुम बैठ जाओ, make rows of 50. तो कतारें बनाओ 50 की। Now 50 is the number of Pentecost. अब 50 अंक है पेंटिकोस्ट का। What was happening? क्या हो रहा था? He's giving them a feast of Pentecost. वो उनको एक पेंटिकोस्ट का पर्व दे रहा था। What was the feast of Pentecost? पेंटिकोस्ट का पर्व क्या था? For 7 Sabbaths. 7 सबत तक, For 7 church ages. 7 कलीसिया कालों तक। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? In that feast, उस पर्व में he took 5 loaves उसने 5 रोटियां ली and 2 fishes. और 2 मछलियां ली। Today I will show you आज मैं आपको दिखाऊंगा in John chapter 6, यूहन्ना 6 अध्याय में, when the people ate that, जब लोगों ने इसको खाया, they wanted to make him king. वो उसको राजा बनाना चाहते थे। Next day they found him. अगले दिन उन्होंने उसको ढूंढा। But listen carefully. लेकिन ध्यान से सुनिए, The real purpose जो वास्तविक मकसद of our Lord Jesus Christ हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो था, of breaking that bread and that fish उस रोटी को तोड़ना और मछली को देना,
was not just feeding them. वो केवल उनको खिलाना नहीं था, For the first time, he was introducing to the public a breaking of bread. पहली बार लोगों के सामने वो परिचय दे रहे थे, वो खोल के दिखा रहे थे रोटी के तोड़े जाने को। Because when they came next day, क्योंकि जब वो अगले दिन आए searching for that bread, उस रोटी को ढूंढते के हुए, the Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, labor not for the meat that perisheth, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, but for that meat लेकिन उस भोजन के लिए which the Son of Man shall give you, जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, for him hath God the Father sealed. क्योंकि उसको खुदा पिता ने मोहर बंदित किया है। Son of Man is the real bread, मनुष्य का पुत्र वास्तविक रोटी है, a sealed bread. एक मोहर बंदित रोटी, And 5 loaves and 2 fishes और 5 रोटियां और 2 मछलियां, was only a type वो केवल एक मात्र तस्वीर था of that real bread. उस वास्तविक रोटी की। So that 5 loaves and 2 fishes तो वो 5 रोटियां और 2 मछलियां, was only a shadow वो केवल एक छाया थी of a real bread breaking. एक वास्तविक रोटी के तोड़े जाने की। Is that much clear? क्या इतनी बात स्पष्ट है? But in that shadow also, लेकिन उस छाया में भी he took 7 things. उसने 7 चीजें ली। 5 bread, 5 रोटी थी, 2 fishes, 2 मछलियां थी, 5 seals were bread seals. 5 मोहरें रोटी वाली मोहरें थी, And there were 2 seals which were fish seals. और 2 मोहरें थी जो कि मछली वाली मोहरें थी। What were the 2 fish seals? 2 मछली वाली मोहर क्या है? The 6th seal and the 7th seal. छठी मोहर और 7वीं मोहर। And you have to eat 5 breads with 2 fishes. और आपको 5 रोटियों को 2 मछलियों के साथ खाना था। You can't understand first seal if you don't understand 7th seal. आप पहली मोहर को समझ नहीं सकते अगर आप 7वीं मोहर को नहीं समझे। You can't understand second seal आप दूसरी मोहर समझ नहीं सकते if you don't understand 7th seal. अगर आप 7वीं मोहर को नहीं समझे। Every other seal has to be eaten with these seals. बाकी तमाम मोहरों को इस मोहर के साथ खाना आवश्यक था। 6th seal and 7th seal छठी मोहर और 7वीं मोहर are connected together. छठी मोहर और 7वीं मोहर एक साथ जुड़े हुए हैं। On the day Brother Branham was to preach the 6th seal, जिस दिन भाई ब्रैनम को छठी मोहर प्रचार करना था, God started opening the 7th seal. खुदावन ने 7वीं मोहर खोलना शुरू कर दिया। When he was meditating in the morning, जब वो सुबह मनन कर रहे थे, something happened in the room. कुछ हुआ घटा कमरे में, And he said, और उन्होंने कहा, if you can get this material अगर तुम इस पदार्थ को ले सको for that seal tomorrow night. उस मोहर के लिए जो अगली रात आने वाली है, What was that night? वो रात क्या थी? The 7th seal. 7वीं मोहर। So 6th seal and 7th seal are connected. तो छठी मोहर और 7वीं मोहर एक साथ जुड़े हैं। What is the 7th seal? 7वीं मोहर क्या है? The coming of the Lord. प्रभु की आमद। What is the 6th seal? छठी मोहर क्या है? A judgment seal एक न्याय वाली मोहर which has 2 parts. जिसके 2 भाग हैं, Investigation judgment जांच पड़ताली न्याय and a frank judgment. और एक साफ साफ न्याय। In the time of investigation judgment, जांच पड़ताली न्याय के समय the Son of Man came मनुष्य का पुत्र आ गया in Abraham's tent. इब्राहिम के तंबू में। In the time of investigation judgment, जांच पड़ताली न्याय के समय the Son of Man descended. मनुष्य का पुत्र नीचे उतर के आया। The 7th seal opened. 7वीं मोहर खुल गई When the 6th seal was taking place, जब छठी मोहर चल रही थी। under the 6th seal छठी मोहर के नीचे are 7 trumpets. 7 तुरैया हैं। Between 6th and 7th trumpet छठी और 7वीं तुरई के बीच में is the coming of the Lord. प्रभु की आमद है। Is the 7th seal. 7वीं मोहर है। The 6th seal छठी मोहर and the 7th seal और 7वीं मोहर are fish seals. ये मछली वाली मोहरें हैं, Are related. ये एक साथ संबंधित हैं। And the other 5 seals और बाकी 5 मोहरें are eaten with these 2 seals. इन 2 मोहरों के साथ खाई जाती हैं। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? God in preview खुदावन पूर्व छाया में showing the bread seals and the fish seals. मछली वाली मोहरों को और रोटी वाली मोहरों को दिखा रहे हैं। 5 on one side, 2 on one side. 5 एक तरफ, 2 एक तरफ, And 5 and 2 make 7. और 5 और 2 मिलके 7 होते हैं। With 7 voices. 7 आवाजों के साथ। Oh brother. हालेलुया मेरे भाई। Bread seals and fish seals. रोटी वाली मोहरें और मछली वाली मोहरें, And 5 and 2 make 7. और 5 और 2 मिलके 7 होते हैं। And what was Son of Man doing? और मनुष्य का पुत्र क्या कर रहा था? Breaking those 7 उन 7 को तोड़ रहा था and feeding the people और लोगों को, भीड़ को खिला रहा था। in the feast of Pentecost. पेंटिकॉस्ट के पर्व में। What is that? ये क्या है? The 7 church ages. 7 कलीसियाई काल। Now I'm asking you a question. अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। Did the Son of Man
open the seals and feed the people of church ages? क्या मनुष्य के पुत्र ने मोहरों को खोला और कलीसिया काल के लोगों को भोजन खिलाया? Did he? क्या किया? I'm going to read a quote to you from the message. मैं संदेश से आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगा. I'm reading from the first seal. मैं पहली मोहर से पढ़ रहा हूं. And may God open the scripture for you. और काश खुदा वचन को आपके सामने खोले. He starts sharing the plan. वो योजना को समझाने शुरू करते हैं. I'm reading from the first seal. मैं पहली मोहर से पढ़ रहा हूं. Notice what happens ध्यान से देखिए क्या होता है as we go along. जैसे हम आगे पढ़ते हैं. Here is the plan of it. यहां पर इसकी योजना है. The first thing happens, पहली चीज जो होती है, there is an announcement in the heavens first. स्वर्ग में पहले एक उद्घोषणा होती है. What happens? क्या होता है? A seal is opened. एक मोहर खुलती है. What is that? ये क्या है? A mystery is unfolded. एक भेद खोला जाता है. See, and when a mystery unfolds, और जब एक भेद खुलता है, then a trumpet sounds. तब एक तुरई फूकी जाती है. It declares a war. और ये एक युद्ध की घोषणा करता है. A plague falls. एक विपत्ति गिरती है. And a church age open. और एक कलीसिया काल खुलता है. What is the war part? युद्ध वाला हिस्सा क्या है? The angel of the church उस कलीसिया का जो दूत है, catches the mystery of God, खुदा के भेद को पकड़ता है, not fully yet revealed, जो कि अभी पूर्णतया तक प्रकट नहीं हुआ. but when he does, लेकिन जब ये करता है, he catches this mystery of God, वो इस खुदा के भेद को पकड़ता है. and then he goes forth to the people. और तब वो लोगों के पास जाता है, After the mystery has been given to him, जबकि भेद उसको दिया जा चुका है, goes forth to the people. लोगों के सामने जाता है. What does he do out there? और वहां पे जाके क्या करता है? He begins to proclaim that message. वो संदेश को फूकना, ऐलान करना शुरू करता है. And what does it start? और ये क्या चालू करता है? A war, एक युद्ध, a spiritual war. एक आत्मिक लड़ाई. What's he sharing here? यहाँ पर वो क्या शेयर कर रहे हैं? An announcement is made in heaven. स्वर्ग में एक उद्घोषणा होती है. What happened? क्या हुआ? A seal is opened. एक मोहर खोली गई. And when a seal is opened, और जब एक मोहर खोली गई, a mystery is unfolded. एक भेद खोला गया. Then what happens? फिर क्या हुआ? The angel of that church उस कलीसिया काल का जो दूत है, comes and picks up this mystery आता है और इस भेद को लेता है and then sounds his message. और जा करके अपने संदेश को फूंकता है. Are you hearing it? क्या आप इसको सुन रहे हैं? Where did the message of the messenger come from? संदेशवाहक का संदेश कहां से आया? From the breaking of that seal. उस मोहर के टूटने से. Are you listening? क्या सुन रहे हैं आप? And when the seal opened और जब मोहर खुली and the message came out, और संदेश बाहर आया, the messenger took that message संदेशवाहक ने उस संदेश को लिया and sounded it in his church age. और जाकर के अपने कलीसिया काल में उसको फूंक दिया. What happened? क्या हुआ? The elect of that age fed upon that message. जो उस युग के चुने हुए थे, उन्होंने उस संदेश से खाया. They ate from that bread of life. उन्होंने उस जीवन की रोटी से खाया. How did they eat it? उन्होंने कैसे खाया? After that seal was broken. जब वो मोहर टूट गई उसके बाद. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Under that breaking, और उस टूटे जाने के नीचे a message came out, एक संदेश बाहर आया, not fully yet revealed. जो कि अभी पूर्णतया प्रकट नहीं हुआ. And the messenger took that message और उस संदेशवाहक ने उस संदेश को लिया and sounded his gospel trumpet. और अपनी सुसमाचार की तुरई को फूंका. And the people of that age और उस युग के जो लोग हैं, ate from that bread of life. उस जीवन की रोटी में से खाया. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Where did they eat from? उन्होंने कहां से खाया? From that broken seal. उस टूटी हुई मोहर में से. I'm asking you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं. पहले क्या आया, मोहरे या कलीसियाई काल? हर कलीसियाई काल का संदेश कहां से आया? यस. हमने तो जो पढ़ा वो पहले कलीसियाई काल, फिर मोहरे. माफ करना मेरे ऐसे हंसने पे. जब तक मोहर नहीं खुलेगी, कलीसियाई काल के दूत को अपना मैसेज नहीं मिलेगा. यानी जो असली मैसेज है वो तो मोहर के खुलने पर है. आमीन. आमीन. लेकिन ब्रदर, सारी मोहरें तो आज खुली. आमीन, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं. तो ये भी एग्री करिए, हर कलीसियाई काल का दूत आत्मा में इस युग में लाया गया.
जैसा यूहन्ना इस युग में लाया गया, Amen, amen, amen. मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। Amen. पौलुस आया, इरेनियस आया, मार्टिन आया, सबने अपना मैसेज लिया और अपने युग में जाके फूका। Amen. पहला झुंड जिसने मोहरों में से खाया वो 7 युगों के लोग थे, जो कि 7 सबत हैं, 7 सत्ते 49, फिर 50वें दिन पेंतिकोस्त। Amen. तो पेंतिकोस्त का पर्व क्या था? 7 कलीसियाई काल, Amen. God bless you, brother. जिसकी तस्वीर हमने यहां देखी कि आप चेलों से कह रहे हैं इन्हें 50 की पंक्तियों में लगाओ। ये 50 की पंक्ति क्या है? पेंतिकुस्त का पर्व। Amen, amen. 7 कलीसियाई काल। Amen. पहला ग्रुप जब पहली बार रोटी तोड़ी गई, Amen. Amen. ओह माय, Hallelujah. उन्होंने उस टूटी हुई रोटी में से खाया। Glory. क्या आपको दिखाई दे रहा है? Amen. 7 युगों की दुल्हन, 7 युगों के चुने हुए उस रोटी में से खाए। समझ मारिए आपके? Amen. 5 रोटी 2 मछली, 7 अदद हैं जो तोड़े गए, हाँ जी. 7 मोहरे। Amen. क्या आपको समझ मारी है? इतना दिख रहा है आपको? Amen. अच्छा, एक बात है, जब हम यहां भी बैठ के खाना खाते हैं, अगर कोई प्लेट में पहले से रोटी भी रख दे तो क्या रोटी यूं चबाने लगते हैं? क्या खाका भाई इंतजार करते हैं कि कोई मछली लाके रखेगा या सब्जी डालेगा? जब तक रोटी में मछली सब्जी नहीं आए तो रोटी का क्या फायदा? बात ये है, इसलिए जब तक 7वीं ना आए, Amen. पहली 5 कहां से खाएं? Amen. जब तक 6ठी और 7वीं ना खुले, पहली 5 कैसे खाएं? सच है, अरे, brother. रे, रे, रे। God richly bless you. क्या आपकी को समझ में आ रही है? आइए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं। द फर्स्ट ग्रुप पहला झुंड which ate the bread जिसने रोटी को खाया were the people of 7 church ages वो 7 कलीसिया काल के लोग थे, under the feast of Pentecost. पेंटिकोस्ट के पर्व के नीचे. When did the feast of Pentecost end? पेंटिकोस्ट का पर्व समाप्त कब हुआ? In the Pentecostal age today. आज इस पेंटिकोस्टल युग में. जब पेंटिकॉस्टल युग आया, इस युग में जो पेंटिकोस्ट के दिन हुआ वही अजूसा स्ट्रीट में हुआ, वो रिपीट हो गया। नबी ने क्या बोला? The big 50 days are over. बड़े 50 दिन समाप्त हो गए. The feast of Pentecost is finished. पेंटिकोस्ट का पर्व समाप्त हो गया. When did it end? ये समाप्त कब हुआ? At the Pentecostal age. पेंटिकोस्टल युग में. When the Pentecostal age finished? पेंटिकोस्टल युग समाप्त कब हुआ? 1945. 1945 में. 3 head preachers. 3 मुख्य प्रचारक, Wigglesworth Smith, विगलस्वर्थ स्मिथ, Charles Price, चार्ल्स प्राइस, Emmy McPherson. एमी मैकफर्सन. 3 head preachers 3 मुख्य प्रचारक in Pentecostal denomination पेंटिकोस्टल डिनोमिनेशन में. died in 1 year, एक ही साल में ये तीनों मर गए, signaling the end of Pentecostal age. संकेत देते हुए कि पेंटिकोस्टल युग समाप्त हो 1 गया. year later, एक साल के बाद in 1946, 1946 में, the angel of 46 में, 1946 the angel of the Lord प्रभु का दूत visits Brother Branham आके भाई ब्रैनम से मुलाकात in करता है Greensville, Indiana, ग्रीन्सविल इंडियाना में, to start another revival. एक और बेदारी चालू करने के लिए. After the big 50 days are over, बड़े 50 दिन के समाप्त होने के बाद, after the 7 Sabbats, 7 सबत के बाद, at the end of Pentecostal age, पेंटिकोस्टल युग के समाप्त God होने, sent a prophet. खुदावंद ने एक नबी को भेजा. How do you see it? आप इसको कैसे देखते हैं? After they ate the bread, जब उन्होंने रोटी खा ली उसके बाद, then the Lord said, तब प्रभु ने कहा, now gather the loose ends. आप छूटे हुए अंशों को इकट्ठा करो. What was that ministry? ये सेवकाई क्या थी? The 7th angel 7वें दूत की, to pick up the loose ends. छूटे हुए अंशों को उठाने की. And when he picked up the loose ends, और जब उसने छूटे हुए अंश उठाए, how many baskets? कितने टोकरे? 12. 12. Returning back to the faith of the apostles. प्रेरितों के विश्वास पे वापस लौटना. Malachi 4. मलाकी 4. Did you catch it? क्या आपने इसको पकड़ा? Did you catch it? क्या आपने इसको पकड़ा? The first group पहला झुंड which ate जिसने खाया, are the 7 church ages. 7 कलीसिया काल है. That was the first breaking ये था पहला तोड़ा जाना in the ministry of Son of Man. मनुष्य के पुत्र की सेवकाई में. 5 loaves and 2 fishes. 5 रोटियां 2 मछली, 7 seals. 7 मोहरें, And people eating from that. और लोग उसमें से खा रहे हैं.
Listen carefully. ध्यान से सुनिए। There's an aspect of seventh seal which I don't want to preach here. एक सातवीं मोहर का एक पहलू है जिसको मैं यहाँ प्रचार करना नहीं चाहता, But maybe later on we will. लेकिन Someday. शायद किसी दिन बाद में करूंगा इसको। Amen. आमीन। But listen to this carefully. लेकिन इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। After they were fed, उनको खिलाने के बाद then he said, gather the loose fragments. तब उसने चेलों से कहा कि टूटे हुए और छूटे हुए अंशों को इकट्ठा कर लो। Whose ministry was that? ये किसकी सेवकाई थी? After 1945, 1945 के बाद what Luther left, जो लूथर ने छोड़ा, what Wesley left, जो वेस्ली ने छोड़ा, what was left in the church ages जो कलीसिया कालों में छूट was गया, gathered वो इकट्ठा किया गया by Malachi 4. मलाकी 4 के द्वारा। And what did it do? और उसने क्या किया? 12 baskets full. 12 टोकरे भर गए। What is it? ये क्या है? Restoration back to the faith of the 12 apostles. 12 प्रेरितों के विश्वास पे वापस फेरना, लौटना। Can you say amen? बालीकरण। क्या आप समझ पा रहे हैं? What was that ministry? वो सेवकाई क्या थी? It started after 1945 ये 1945 के बाद चालू when हुई, a prophet came जब एक नबी आया and started explaining baptism, और बपतिस्मा समझाने लगा। Godhead, खुदायत, serpency, सरपंच, temple, मंदिर, dwelling place, निवास स्थान, so many mysteries और तेरे भेद which the reformers left. जो कि संशोधकों ने छोड़ दिया, But now he brought it. लेकिन अब उसको लेके आया। Why? क्यों? To restore the faith. ताकि उनके विश्वास को बहाल करे। And I want to show you something. और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। After that was finished. ये सब कुछ समाप्त होने के बाद, That's Luke chapter 9. ये लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय है। That was the first breaking of bread ये पहला रोटी का तोड़ा जाना था in the ministry of Son of Man. मनुष्य के पुत्र की सेवकाई में। And I want to show you. और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, Immediately after that breaking, तुरंत उस तोड़े जाने के बाद the crowd left him. भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। Only 12 were left. केवल 12 उसके पास रह गए। In that first breaking, उस पहले तोड़े जाने में all unbelievers left. तमाम अविश्वासी जो थे वो छोड़ के चले गए। Only believer and make believer were left. केवल विश्वासी और बनावटी विश्वासी रह गया। In that first breaking, उस पहले तोड़े जाने में he pointed to the second breaking उसने संकेत दिया दूसरे तोड़े जाने को की ओर and said, और कहा, this is not the real bread. ये वास्तविक रोटी नहीं है, I am the bread मैं ही रोटी हूं that came down from heaven. जो स्वर्ग से नीचे उतर के आया हूं। बताओ भैया, ऐसी कौन सी रोटी है आज जो स्वर्ग से उतर के आई? आमेन 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 आमेन। The seven seals 7 मोहरों की पुस्तक opened in heaven, स्वर्ग में खोली गई, brought down to this earth. इस पृथ्वी पर नीचे लाई गई। I am that bread मैं ही वो रोटी हूं that's come down from heaven. जो स्वर्ग से नीचे आया हूं। He that eats my flesh जो मेरा मांस खाए and drinks my blood और मेरे लहू को पिए has eternal life, उसके पास अनंत जीवन है, and I'll raise him up at the last day. और मैं अंतिम दिन में उसको जिला उठाऊंगा। What was he doing? वो क्या कर रहे थे? Pointing them to another breaking. उनको इशारा दे रहे थे एक और तोड़े जाने की ओर। At the end of Jewish age, यहूदी युग के समापन पे, at the end of his ministry, अपनी सेवकाई के अंत पे another breaking. एक और तोड़ा जाना। In other words, he was telling them, दूसरे शब्दों में उनसे कह रहा था, I'll break the bread second time. मैं रोटी को दूसरी दफा तोड़ूंगा। Are you ready for it? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? But this bread लेकिन ये रोटी, is my flesh, ये मेरा मांस है, is my blood. ये मेरा लहू है। Are you ready for it? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? Before they could come to that breaking, इससे पहले कि वो उस तोड़े जाने तक पहुंचे, the crowd left him. भीड़ उसको छोड़ के चली गई। He had entered another phase of his ministry. वो अपनी सेवकाई के एक और चरण में प्रवेश कर गया। Now he was moving from healing revival to the word. अब वो चंगाई की बेदारी से बढ़ रहा था वचन की ओर। Follow with me, please. मेरे साथ कृपया चलिए। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Where did he break the bread second time? दूसरी दफा उसने रोटी कहाँ तोड़ी? That's why I picked the book of Luke. इसलिए मैंने लूका की पुस्तक को लिया। Now turn with me to Luke chapter 21, और 22. मेरे साथ निकाले लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय। This is where he fulfilled what he said in John 6. ये है वो जगह जहां उन्होंने पूरा किया उस बात को जो उन्होंने यूहन्ना 6 में कहा। Follow it with me, brother. मेरे साथ चलने की कोशिश करें मेरे भाई। Please don't move इधर उधर ना घूमे and concentrate, please, for some time.
और कॉन्सेंट्रेट हो, एकाग्र मन हो थोड़े समय के लिए वचन में। At the time of the second breaking, दूसरे तोड़े जाने के समय he specified the place, उसने उस स्थान को खास रीति से बताया। a upper room, एक उपराठी कोठरी furnished. जो कि फर्निश्ड है, जिसमें तमाम सामान है। There you prepare the Passover. वहां पर तुम फसह तैयार करना। Now this is second time अब ये दूसरी दफा है when he will break bread. जब वो रोटी को तोड़ेंगे। But this breaking लेकिन ये तोड़ा जाना is not Pentecostal feast. ये पेंटिकॉस्टल पर्व नहीं है। This breaking ये तोड़ा जाना is a private breaking. ये एक एकांत में तोड़ा जाना है। In that room, उस कमरे में he, वो his disciples, और उसके चेले and Judas Iscariot. और यहूदा इस्करियोती। Luke chapter 22, लूका की इंजील 22वां अध्याय verse 14. और 14वीं आयत। And when the hour was come, he sat down and the 12 apostles with him. जब घड़ियां पहुंची तो वो प्रेतों के साथ भोजन करने बैठा। 12 चेलों के साथ। यस, कहां गई वो 50-50 की पंक्तियां? वो तो निकल ली, पिछली गली से खिसक ली। That feast was over. वो पर्व समाप्त हो गया था। This is his bread breaking time, second time. ये इसके रोटी तोड़ने का समय है, दूसरी दफा। And he said unto them, और उसने उनसे कहा, with desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। And I'm now reading from verse 19. अब मैं 19वें आयत से पढ़ रहा हूं। This is when the Lord is having communion with his disciples. ये वो समय है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज कर रहे हैं अपने चेलों के साथ। And he took bread फिर उसने रोटी ली and gave thanks और धन्यवाद दिया and break it. और उसको फिर तोड़ा। What he had done first time, जो उसने पहली दफा किया था, now he's doing it again the second time. अब वो दूसरी दफा उसको दोहरा रहा है। Gave thanks धन्यवाद दिया and break it. और उसको तोड़ा And gave unto them, और उनको दिया, saying, this is my body, और ये कहकर उनको दिया कि ये मेरी देह है which is given for you. जो तुम्हारे लिए दी जाती है। This do in remembrance of me. मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Likewise also the cup after supper, और इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया, saying, ये कहते हुए, this cup is the New Testament in my blood, ये कटोरा मेरे उस लहू में नई वाचा है which is shed for you. जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। When did he break the bread second time? दूसरी दफा उसने रोटी कब तोड़ी? When he was crucified. जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया। Thursday night, थर्सडे रात he broke bread. उसने रोटी तोड़ी। Friday, he was crucified. फ्राइडे को वो क्रूस पे चढ़ा दिया गया। When was the second breaking? तब थी दूसरी तोड़ा जाना। अरे brother, when was the second breaking? दूसरा तोड़ा जाना कब था? At the hour of crucifixion. क्रूस पे चढ़ाए जाने की घड़ी पे। And what happened? और क्या हुआ? He was opened in 7 places. वो 7 जगहों से खोला गया And spoke 7 voices. और 7 आवाजें बोली। What was that? ये क्या था? Opening of the seals. मोहरों का खुलना। In this age. इस युग में। In 1963. 1963 में। Tell me. मुझे बताइए, Was 1963 crucifixion? क्या 1963 क्रूस पे चढ़ाए जाना था? Was it a crucifixion year? क्या वो साल था क्रूस पे चढ़ाए जाने का? क्या आपने मैसेज पढ़ा है? Amen. पढ़ते होगे ब्रदर, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। Amen. What was 1963? 1963 क्या है? Crucifixion year. क्रूस पे चढ़ाए जाने वाला साल। Did prophet preach indictment? क्या मसीह ने क्या भाई ब्रैनम ने दोषारोपण वाला संदेश प्रचार किया? I indict this generation for crucifying Christ the second time. मैं इस पीढ़ी को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ा जाने के लिए दूसरी दफा दोष लगाता हूं। Where from? कहां से? Not from a wooden cross, लकड़ी की क्रूस पे नहीं, but from a wooden denominational pulpit, लेकिन एक डिनोमिनेशन की लकड़ी की पुलपिट से making the word of none effect. वचन को बेअसर कर दिया। He indicted this generation. उसने तौमत दी इस पीढ़ी को। When that crucifixion was taking place, जब ये क्रूस पे चढ़ाया जाना घट रहा था, same year, वही साल the seals were opened. मोहरें खुल गई।
In this age, इस युग में, not in Pentecostal age, पेंटिकॉस्टल युग में नहीं, not for 7 church ages, 7 कलीसिया कालों के लिए नहीं, but for this age. लेकिन इस युग के लिए। And what happened? और क्या हुआ? In that second breaking, उस दूसरे तोड़े जाने में the make believer left, जो बनावटी विश्वासी है वो छोड़ के चला गया। Pentecostals left, पेंटिकॉस्टल चले गए, Judas left. यहूदा इस्करियोती चला गया। यस सर। At every breaking of bread, हर एक रोटी के तोड़े जाने पर the crowd is becoming thinner and thinner. भीड़ बहुत ही थोड़ी और थोड़ी होती जा रही है। In these 3 breakings, इन 3 तोड़े जाने में, which I will show you today, जो मैं आज आपको दिखाऊंगा, it's like a pyramid. ये एक पिरामिड के मानंद है। It is a broad base. नीचे तो ये बहुत चौड़ा है, But by the time third breaking comes, लेकिन जब तक ये तीसरा तोड़ा जाना आता है, it's like this. वो इस प्रकार से है। It's a minority. ये बहुत ही थोड़े लोग हैं, The majority have left. मुख्य लोग छोड़ के चले गए। कौन छोड़ के चला गया? अविश्वासी, Amen। बनावटी विश्वासी। मैं कहूं साधारण शब्दों में, बकवास। यस सर। रोटी के तोड़ने ने बकवास भगा दिया। Amen। बकवास चला गया, केवल चुना हुआ रह गया। Amen, amen। God bless you, my brother। The second time he broke bread, दूसरी दफा जब उसने रोटी तोड़ी, it was a communion. तो ये प्रभु भोज था। It was his flesh and his blood, उसका मांस और उसका लहू था, which he depicted जो उसने दर्शाया by the breaking of bread. रोटी को तोड़े जाने से। Next day, अगले दिन he was smitten. वो पीटे गए, मारे गए। That body which that bread represented वो देह जो वो रोटी दर्शाती थी, was opened in 7 places. वो 7 जगहों से खोली गई। सालों साल हम रोटी को अशराबानी में ऐसे तोड़ते थे। इस मुकाशवे के बाद अब मैं रोटी के 7 टुकड़े बनाता हूं। जब मैं रोटी अपने चर्च में बांटता हूं, उसके 7 टुकड़े बनाता हूं, दर्शाने के लिए कि ये 7 मोहरे हैं, Amen। टूटी हुई, Amen। जिसमें से हम भागीदार होते हैं। यस यस यस। And I'm seeing a different anointing. और मैं एक फर्क अभिषेक को देख रहा हूं। I can tell you that. मैं आपको ये बता सकता हूं, That second breaking ये दूसरा तोड़ा जाना was the breaking of the seals ये मोहरों का तोड़ा जाना था, in the second crucifixion. इस दूसरे क्रूस पे चढ़ाए जाने में। Another Good Friday, एक और गुड फ्राइडे, when Christ the Word was crucified. जब मसीह जो कि वचन है क्रूस पे चढ़ा दिया गया। What was that opening? ये खुलना क्या था? 1963, 1963, when the seals were opened. जब मोहरें खोली गई, It was the second opening. ये दूसरा खुलना था। I would say second breaking मैं कहूंगा दूसरा तोड़ा जाना for the people of last days. अंतिम दिन के लोगों के लिए। And when that breaking took place, और जब ये तोड़ा जाना हुआ, Judas left. यहूदा इस्करियोती छोड़ के चला गया। Did you see it? क्या आप इसको देख पा रहे हैं? What did the preaching of seals do? मोहरों का प्रचार क्या करेगा? All that make-believe stuff left. तमाम बनावटी विश्वास वाला जो पदार्थ था वो चला गया। Now what happens? अब क्या होता है? I'll show you the third opening. मैं आपको तीसरा खुलासा, तीसरा तोड़ा जाना दिखाऊंगा। Same book of Luke. यही लूका की इंजील। Now turn to chapter 24. अब निकाले 24वां अध्याय। गॉड लॉर्ड जीसस, माय गॉड। And behold, I'm reading from verse 13. मैं 13वीं आयत से 13वीं आयत से। 13वीं आयत से पढ़ रहा हूं। And behold, 2 of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 3 furlongs. उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। Is that right? ये बात ठीक है? God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। And they talked together of all these things which had happened. और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। What had happened? क्या हुआ था? That morning, उस सुबह a mighty angel had come, एक महान बलिदूत नीचे आया opened that seal, और उसने उस मोहर को खोल दिया and told some sisters, और कुछ बहनों को कहा, he is not here, वो यहाँ नहीं है, he is alive. वो तो जी उठा है। It was the resurrection day. ये पुनरुत्थान का दिन था। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Follow the message with me. संदेश को मेरे साथ चलें। They are talking with each other. वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे To हैं। cut a long story short, लंबी कहानी को छोटा करते हुए, while they were talking with each other, जब वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, now this is after the second breaking. अब ये चीज दूसरे तोड़े जाने के बाद की घटना है।
after he had broken the bread second time, जब उसने दूसरी दफा रोटी को तोड़ दिया, not for the Pentecostal feast, पेंटिकॉस्टल पर्व के लिए नहीं, but for the last age, लेकिन अंतिम युग के लिए, when there were 12, जहां केवल 12 थे, and the 12th Judas left. और 12वां जो यहूदा इस्करियोती था छोड़ के चला गया। What was that time? वो समय क्या था? His crucifixion. उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने का। We saw it today. हमने इसको आज देखा, The opening of the seals. मोरों का खुलना, In 1963, 1963 में the coming of the cloud. बादल का आना, And at that time, और उस समय this word was crucified, ये वचन क्रूस पे चढ़ाया गया, rejected. तिरस्कार हुआ। Is that right? क्या बात सही है? This is the second breaking. ये दूसरा तोड़ा जाना है। After that second breaking, उस दूसरे तोड़े जाने के बाद here there are two यहाँ पर अब केवल 2 हैं walking on the way to Emmaus, जो कि इमाउस की राह पे जा रहे हैं, talking about the things that had happened. उन बातों में के बारे में चर्चा करते हुए जो इन दिनों में हुई है। And while they were talking, और जबकि वो बातचीत कर रहे थे, a third man joined, एक तीसरा मनुष्य उनके साथ जुड़ गया, जो गया था गुड फ्राइडे के दिन ओ गॉड, एक दूसरी शक्ल बना के फिर से उनके बीच में आ गया। Try to catch it इसको पकड़ने की कोशिश करें। and start asking them, और उनसे पूछने लगा, what are you talking? तुम क्या बातचीत कर रहे हो? Are you the only stranger? क्या Are you the only stranger वो उनसे कहते क्या तुम अकेले अजनबी हो, who doesn't know what's happened these days? जिसको मालूम नहीं कि इन दिनों में क्या हुआ है? Mighty prophet came महानबी आया and they crucified him. और उन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, He went away. वो चला गया। Is it okay? मैंने कहा ठीक है। And then the Bible says और तब बाइबल बताती है, he started opening scriptures to them उसने उनके सामने आयतों को खोलना शुरू किया and started showing them the modern events, और उनको आधुनिक घटनाओं को दिखाना शुरू किया। things which had happened in their days, वो बातें जो in present tense, बाइबल को वर्तमान काल में रखते हुए when they started seeing it, जब उसको देखने लगे, they started loving the stranger. उनको इस अजनबी से प्रेम हो गया। Now we are jumping to verse 28. हम 28वीं आयत में जा रहे हैं अब। And they drew nigh unto the village whither they went. और वो उस गांव के समीप आ गए जहां पे वो जा रहे थे, And he made as though he would have gone further. और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, And they constrained him, saying, Abide with us. परंतु उन्होंने उसको For it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them. परंतु उन्होंने उससे ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread and blessed it and brake and gave to them. और ऐसा हुआ जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। And their eyes were opened, तब उनकी आंखें खुल गई and they knew him, और वो उसको पहचान गए and he vanished out of their sight. और वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। Listen, brother, सुनिए मेरे भाई, in that first breaking, उस पहले तोड़े जाने में nobody's eyes opened. ओ किसी की आंखें नहीं खुली। In that second opening, उस दूसरे रोटी के तोड़े जाने में Judas left. यहूदा इस्करियोती छोड़ के चला But गया, in this third opening, लेकिन इस तीसरे तोड़े जाने में something special happened. कुछ खास हुआ। Their eyes were open, उनकी आंखें खुल गई and they knew him. और वो उसको पहचान गए। Try to understand. इसको समझने की कोशिश करिए। In this breaking, इस तोड़े जाने में मैं थोड़ा खोलना चाहता हूं ताकि आपको कुछ दिशा दूं. गॉड ब्लेस यू ब्रदर। In that third breaking, इस तीसरे तोड़े जाने में it was only 2 believers. केवल 2 विश्वासी थे। There was no make believer. कोई बनावटी विश्वासी नहीं था, There was no unbeliever. कोई अविश्वासी नहीं था। भैया रोटी 3 बार तोड़ी जा रही है, ये क्या कह रहे हैं आप? यस ब्रदर, यस यस। If you read the message carefully, अगर आपने संदेश को ध्यान पूर्वक पढ़ा हो, the prophet explained, नबी ने समझाया, it's written in the Bible, ये बाइबल में लिखा है, he was known of them by the breaking of the bread. रोटी के तोड़े जाने के द्वारा उन्होंने उसे पहचाना। He had a manner of breaking bread. उसके पास
उसके पास एक तरीका था रोटी तोड़ने का, जिसे चेले पहले देख चुके थे। आमीन। And when he broke the bread, और जब उसने रोटी तोड़ी, immediately Cleopas said, तुरंत क्लियोपास ने कहा, ये मैंने पहले देखा है। आमीन। कोई था जो ऐसे ही रोटी तोड़ता था, आमीन। किसी ने पहले से रोटी तोड़ी है, तभी उनकी आंखें खुल गई। अरे ये तो यीशु मसीह थे। आमीन, आमीन, आमीन। That third breaking was a repeat of the second breaking. ये तीसरा रोटी का तोड़ा जाना, दोहराया जाना था उस दूसरे रोटी के तोड़े जाने का। The second breaking, दूसरा तोड़ा जाना, the opening of the seals, मोहरों का खुलना, was repeated वो दोहराया गया in a second cycle. एक दूसरी चक्री में। In which season? सॉरी, In which season? कौन से मौसम में? When rapture had begun. जब रैप्चर चालू हो चुका था। That morning, उस सुबह Christ had resurrected मसीह जी उठे थे and graves had started opening. और कब्रें खुलने लगी थी। In that season of rapture, उस रैप्चर वाले मौसम में came a third opening, एक तीसरा खुलना आया, which was a repeat जो कि दोहराया जाना था of the second time. दूसरे दफा की। And somebody was there और कोई था वहां पर in that third opening, उस तीसरे खुलासे में, recognized जिसने पहचान लिया in that manner उस रूप में, उस तरीके में होते हुए, when he repeated it जब उसने उस तरीके को दोहराया in a second cycle, एक दूसरी चक्री में, in another wave. एक और लहर में। Try to understand it. इसको समझने की कोशिश करिए। And what did they recognize? और उन्होंने क्या पहचाना? Not flesh body, शरीर रूपी देह नहीं, but his glorified body. लेकिन उसकी महिमा युक्त देह को। What did they understand? उन्होंने क्या समझा? This glorified body ये महिमा युक्त देह is now on earth. अब पृथ्वी पर है। What is this opening of fire? ये आंखों का खुलना क्या है? This mighty angel ये महान शक्तिशाली दूत is here. यहाँ पर है And you literally see him. और आप वास्तविकता में उसको देखते हैं। Their eyes were open उनकी आंखें खुल गई in that second opening, इस दूसरे खुलने में, in that third opening, इस तीसरे खुलने में, after the second opening. दूसरे खुलने के बाद। And when that happened, और जब ये हुआ and their eyes were open, और उनकी आंखें खुल गई, they knew him. वो उसको पहचान गए। Where did this happen? ये सब कुछ कहाँ हुआ? Emmaus. एमाउस में। I searched for the meaning of Emmaus. मैं ढूंढने गया एमाउस का मतलब। Emmaus, मैंने पहले कुछ और प्रचार किया, but Emmaus means hot springs. लेकिन एमाउस का मतलब है गरम सोते। After the opening of the seals, मोहरों के खुलने के बाद Brother Branham went to a place called Hot Springs, Arkansas. भाई ब्रैनम गए एक स्थान पे जिसका नाम था हॉट स्प्रिंग्स, आर्कनसास। And what did he preach there? और वहां पर क्या प्रचार किया? Oh Lord, just once more. हे प्रभु एक बार और। He preached Samson. उन्होंने शमशून का प्रचार किया। He preached Jesus Christ the same yesterday, today and forever. उन्होंने प्रचार किया यीशु मसीह कल, आज और युगानु एक सा है। He preached why? उन्होंने संदेश का प्रचार किया क्यों? 4 messages 4 संदेश and 1 big message. और एक बड़ा संदेश। Oh Lord, just once more. हे प्रभु एक बार और। When Samson is saying, और शमशून कह रहा है Lord, send that Holy Ghost. प्रभु उस पवित्र आत्मा को भेज दे। Just once more. केवल एक बार और। Hot Springs, हॉट स्प्रिंग्स, Emmaus, एमाउस, another wave, एक और लहर, another ride. एक और सवारी। What happens in that ride? उस सवारी में क्या होता है? He repeats what happened in the first ride. वो दोहराता है जो कुछ पहली सवारी में हुआ था। What happened in the first ride? पहली सवारी में क्या हुआ? A message came एक संदेश आया with the opening of the seals. मोरों के खुलने में, And he repeats that और वो उसको दोहराते हैं second time. दूसरी दफा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या किताब का खुलना पहली निकासी में 2 दफा हुआ? पहली बार एक पीढ़ी को। व्यवस्था विवरण की किताब क्या है? यस सर, वही पुस्तक दोहराई गई अगली पीढ़ी को। आमेन। दूसरी निकासी में मैं आपको दिखा रहा हूं 3 बार रोटी तोड़ी।
Amen. What about the third Exodus? तीसरी निकासी के बारे में क्या कहेंगे? Another generation एक और पीढ़ी receiving a repeat, जो कि उस दोहराए जाने को प्राप्त कर रहा है, a breaking, एक तोड़ा जाना, एक ओपनिंग है ब्रदर. Amen. उस ओपनिंग में इस बार आंखें खोल दी जाएंगी Amen. इनकी मौजूदगी को लेके Amen. जो यहां पर है. Amen. Amen. There's another meaning. एक और मतलब है, This is Emmaus, ये इमाउस है and the theophany is Jerusalem. और थियोफनी जो है वो यरूशलेम है. They had left Jerusalem and come to Emmaus. वो यरूशलेम छोड़ करके इमाउस पे आए थे. Immediately after this third breaking, तुरंत इस तीसरे तोड़े जाने के बाद they returned from Emmaus to Jerusalem. वो लौट के गए इस इमाउस से यरूशलेम की ओर. They returned back to the theophany. वो वापस अपने थियोफनी में लौट गए. Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? A rapture एक रैप्चर, in a second ride. एक दूसरी सवारी में. What's happening? क्या हो रहा है? He's doing what he has done before. वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने पहले किया था. He's repeating a cycle. वो एक चक्री को दोहरा रहे हैं. He's repeating a ride. वो एक सवारी को दोहरा रहे हैं. When he's returned back जब वो वापस लौट के आए in another form, एक और रूप में, between second breaking and third breaking. दूसरे तोड़े जाने और तीसरे जोड़े तोड़े जाने के बीच में. Remember that. इसको याद रखिए. In second breaking, दूसरे तोड़े जाने में he was in a flesh body. वो एक शरीर रूपी देह में थे. In the third breaking, तीसरे तोड़े जाने में he had changed from flesh to the glorified body, वो शरीर से तब्दील होकर के महिमा युक्त देह में चले गए थे, which could appear and disappear. जो कि प्रकट हो सकती थी और गायब हो सकती थी. The third opening was not done by flesh body, जो तीसरा खोला जाना है वो मांस रूपी देह के द्वारा नहीं हुआ, but by a glorified one. लेकिन एक महिमा युक्त देह के द्वारा. After that, उसके बाद he told his disciples, उसने अपने चेलों से कहा, touch me, मुझे छुओ, feel me, मुझे महसूस करो. I'm giving you an evidence मैं तुम्हें एक प्रमाण दे रहा हूं what you will be, कि तुम क्या होगे, what body you will have. तुम्हारे पास कौन सी देह होगी. When did that happen? ये कब हुआ? In a rapture season, एक रैप्चर के मौसम में. not in church ages, कलीसिया कालों में नहीं, not in 63, 63 में नहीं, but in the time of rapture, लेकिन रैप्चर के समय पे, in the time of the voice of archangel, प्रधान दूत के शब्द के समय में, when the graves were opening, जब कब्रें खुल रही थी, rapture had begun. रैप्चर चालू हो चुका था. Some living ones, कुछ जीवतों के सामने another opening, एक और खोला जाना, a repeat एक दोहराया जाना of that opening उस खोले जाने which he का, did at crucifixion. जो उसने क्रूस पे चढ़ाए जाने के समय किया. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? At the opening of the seals, मोरों के खोले जाने के he's समय repeating it again. इसको दोबारा दोहरा रहे हैं. And when he did that, और जब उन्होंने ये किया, this time इस दफा their eyes were open. उनकी आंखें खुल गईं. They recognized उन्होंने पहचान लिया the living Christ, जीवता मसीह, the mighty angel, महान शक्तिशाली तू, in another body एक और देह में, among them. उनके बीच में. And when that happened, और जब ये हुआ, they rushed back to Jerusalem. वो वापस लौट के गए यरूशलेम. They rushed back to the city. वो वापस लौट के गए शहर में. They rushed back to the theophany वो वापस भाग के गए थियोफनी में, in a glorified body. एक महिमा युक्त देह में. A rapture today. एक रैप्चर जो कि आज होगा. Can you catch the message? क्या आप संदेश को पकड़ पा रहे हैं? 3 breakings of bread रोटी का 3 दफा तोड़ा जाना in the ministry of the Son of Man. मनुष्य के पुत्र की सेवकाई में. And it was the third breaking और ये तीसरा तोड़ा जाना when था their eyes were opened. जब उनकी आंखें खुल गईं. Between second and third breaking, दूसरे और तीसरे तोड़े जाने के बीच में he was doing another ministry. वो एक और सेवकाई कर रहे थे. Modern events आधुनिक घटनाएं and the happenings, और घटनाएं, placing them in prophecy. और उनको नबूवतों में स्थान दे रहे थे. This is what the prophet said. देखो ये वो बात है जो नबी ने कही, And this is what happened. और देखो ये हुआ. This is what the prophet said. आप देखो नबी ने क्या कहा This is what था, happened. और ये हो गया. And what was happening? और क्या हो रहा था? This. In Emmaus they said, इमाउस में उन्होंने कहा, wasn't our hearts burning? क्या हमारे हृदय अंदर से चलते ना थे? Emmaus means hot springs. इमाउस का मतलब है गरम सोते. And what was happening in their hearts? और उनके हृदय में क्या हो रहा था? Hot springs. गरम सोते. When he was talking with them, जब वो उनसे बातचीत कर रहा था, could it be possible tonight क्या ये संभव है आज रात्रि that he's here in this hall कि वो यहाँ पर इस हॉल में है and still breaking that bread? और अभी भी उस रोटी को तोड़ रहा हो? Amen, I believe it, brother. Isn't he showing the modern events? क्या वो आधुनिक घटनाओं को नहीं दिखा रहे? Isn't he placing the Bible today? क्या बाइबल को आज स्थान और जगह नहीं दे रहे? साउल आज की तारीख पे, दाऊद आज की तारीख पे, सारे बाइबल कैरेक्टर्स आज की तारीख पे, क्या ये हुआ नहीं? Amen, हो रहा है ब्रदर. क्या उन मीटिंग्स को अटेंड करके हमारे दिल चलते ना थे? Yes, brother, yes. But now the time has come लेकिन अब समय आ गया है when graves will open. जब कब्रें खुल जाएंगी, And that time, और वो समय another ride, एक और सवारी, a white horse rider from the west.
west. एक पश्चिम से श्वेत घुड़सवार, Another breaking. एक और तोड़ा जाना। After that second breaking, उस दूसरे तोड़े जाने के बाद, after the crucifixion breaking, क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले तोड़े जाने पे, a resurrection breaking. एक पुनरुत्थान वाला तोड़ा जाना। When he comes in another body जब वो एक और देह में आते हैं, in the earth, पृथ्वी के ऊपर, talking with them, उनसे बातचीत he करते had हुए, already entered his third pole वो पहले से अपने तीसरे खिंचाव में प्रवेश कर चुके in the हैं। ministry of Azazel. आजाजेल की सेवकाई में He होते had हुए preached to the souls in prison, उसने उन रूहों से जो बात की जो कैद में हैं, and that ministry had begun. और वो सेवकाई चालू हो That गई, season had started. वो मौसम चालू हो गया। In that season, उस मौसम में he went into a house again वो एक घर में दोबारा गए and broke bread. और रोटी को तोड़ा, And this time, और इस दफा their eyes were opened. उनकी आंखें खुल गई। ये तो खैर पक्की बात है, रोटी हजारों बार तोड़ी होगी, यस यस यस, लेकिन तीन मुख्य जगहें हैं जो बाइबल में है। जो बाइबल में दर्ज हैं, यस, जहां आपने रोटी तोड़ी. आमेन। And the third breaking. और तीसरा तोड़ा जाना, Could it be possible? क्या ये संभव है We are living in the third breaking time. कि हम तीसरे रोटी के तोड़े जाने वाले समय में रह रहे हों? Two gave them their bread. दो थे जिन्होंने अपनी रोटी उसको दी। A lad gave him the bread. एक लड़के ने अपनी रोटियां उसको दी। Their disciples prepared the bread. वहां पर चेलों ने दूसरी दफा रोटी तैयार करी। Is that the फसल तैयार Bible? करी। क्या ये बाइबल है? Who could be that lad? वो लड़का कौन हो सकता है? I'm leaving some questions. मैं कुछ सवाल छोड़ कर जा रहा हूं। Whose tiffin is it? ये किसका डब्बा है? He took and broke it उसने लिया और उसको तोड़ा and fed the first time. और पहली दफा खिलाया। Second time, दूसरी दफा he took bread and broke it उसने रोटी लिया, उसको तोड़ा and fed the 12. और 12 को खिलाया। Third time, तीसरी दफा, come to us. हमारे साथ आजा अंदर। For the third breaking, तीसरे तोड़े जाने के लिए you have to invite him. आपको उसको निमंत्रण और इनवाइट करना है। Not just be happy with a good message, केवल एक अच्छे संदेश के साथ खुश ना हो जाएं, but invite him in your house. लेकिन उसको अपने घरों में बुलाएं। And when he comes to your house, और जब वो आपके घर में आएगा, he'll break it another time. वो एक दफा और इसको तोड़ेगा। In this last time, इस अंतिम दफा he'll open your eyes. वो आपकी आंखों को खोल देगा। To what? किस बात के लिए? A rapture. एक रैप्चर के लिए, A seal एक मोहर के लिए which has opened. जो खुल चुकी है, An Easter seal एक ईस्टर वाली मोहर happening now. जो कि आज खट रही है In this hour. इस घड़ी में। God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत Lord दे। links you again. प्रभु ने चाहा तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। Pastor Kaka. पास्टर खाका।